in the event the offer price is capable of being determined under any of the parameters specified in subregulation 3 without prejudice the requirements of subregulation 5, the offer price shall be the fair price of shares of the target company to be determined by the acquirer and the manager to the open offer, taking into account valuation parameters, including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies. कह रहा रेगुलेशन 3 जो ऊपर था अपना डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्विजिशन के लिए, अगर किसी भी कारण वो प्राइस नहीं निकल पा रहा है, उसका नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, तब वो वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेस पे प्राइस निकालेंगे। ओके, ठीक है। In the case of indirect acquisition and open offers under subregulation 2 of regulation 5, where proportional net asset value of the target company as a percentage of the consolidated net asset value of the entity or business being acquired, proportionate sales turnover of the target company as a percentage of the consolidated sales turnover of the entity or business being acquired, or the proportion market cap of the target company as a percentage of the enterprise value for the entity or business being acquired is in excess of 15% on the basis of most recent audited annual financial statements, the acquirer shall, notwithstanding anything contained in subregulation 2 or 3, subregulation 3, be required to compute and disclose in the letter of offer the per share value of the target company, taking into account for the acquisition along with a detailed description of the methodology adopted for such computation. क्या कह रहा है कि जहाँ पे भी इंडायरेक्ट एक्विजिशन है, और टर्नओवर, नेट एसेट वैल्यू या मार्केट कैप क्राइटेरिया, टारगेट कंपनी वर्सेस बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड, वो 15% से ज्यादा है, तब आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेस पे पर शेयर वैल्यू भी कंप्यूट करके डिस्क्लोज करना है। ओके, तो ये रेगुलेशन 5 में एक मिनट, 5 में notwithstanding कि indirect acquisition where excess of, okay, ये तो जब ट्रिगर हो रहा है तब you have to make an open offer, okay, और ये है प्राइस के लिए, fair enough। सिंपल समझ लो, दो टाइप के एक्विजिशन है, डायरेक्ट एक्विजिशन, इनडायरेक्ट एक्विजिशन। करेक्ट। इनडायरेक्ट एक्विजिशन को उसने पहले तो दो टुकड़ों में बांटा, 80% पैरामीटर मैच हो रहे हैं, 80% से कम हो रहे हैं। करेक्ट। फिर उसने एक तीसरी कैटेगरी भी बनाई कि 15% से ऊपर वाला जिसमें मैच हो रहा है, हाँ, और जिसमें 15% से ऊपर मैच हो रहा है उसको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में पर शेयर वैल्यू भी लिखनी है, और ये पर शेयर वैल्यू वन ऑफ द पैरामीटर रहेगा जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, ऊपर के प्राइसिंग में हर एक में एफ में यही था ना, पर शेयर वैल्यू। इधर यही आएगा कि इनडायरेक्ट एक्विजिशन when 15% criteria being exceeded, okay, then per share value to be disclosed, per share value to be computed and disclosed as per valuation report, disclosed as per valuation। ठीक है, क्लियर है ना। यस। एक्सप्रेशन हमने निकाला था, मार्केट कैप कैसे निकालेंगे? मार्केट कैप नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर। नहीं, दो अलग चीजें थी ना, ये तो होगा कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कौन से दिन का, 60 डेज का, कब से? 60 डेज जब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या फिर पब्लिक इंटेंशन अनाउंसमेंट हुई व्हिचएवर थी, इज दोनों में अर्लियर। जो भी अर्लीस्ट डेट है, जनवरी या मार्च में से, हाँ, उसके 60 डेज प्रायर का वैल्यू वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, ठीक, उससे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट कैप। गॉट इट। ठीक है, for the purpose of subregulation 2 and subregulation 3, where the acquirer or any pack with him has any outstanding convertible instruments convertible into shares of the target company at a specific price, the price at which such instruments are to be converted into shares shall also be considered as a parameter under regulation 3(2). पैरामीटर थे, अभी आपने वारंट इशू किए हुए हैं, सीसीपीएस इशू किए हुए हैं, इसका कन्वर्जन प्राइस है 200 रुपये। करेक्ट। तो ये भी उसमें ऐड हो जाएगा क्राइटेरिया।
Okay. Understood. तो कन्वर्जन प्राइस एडिशनल क्राइटेरिया इतना लिख सकते हो। Okay. For the purpose of subregulation 2 and लिख लो, subregulation 3. लिख लो, हाँ टेबल में लिख लो। हाँ. For conversion प्राइस of warrant of conversion price of warrant additional of convertible securities price of warrant or other into convertible bracket security warrant stroke other convertible securities shall also be one of the criteria हाँ for हाँ. determining price. Okay. Okay. For the purpose of subrogation 2 and subrogation 3, the price paid for shares of the target company shall include any price paid or agreed to be paid for the shares of voting rights in or control over the target company in any form whatsoever, whether stated in the agreement for acquisition of shares or in any incidental, contemporaneous, or collateral agreement, whether termed as control premium or as non-compete fee or otherwise. प्राइस पेड में वो क्या बोल रहा है? आपने एग्रीमेंट में लिखा 10 रुपए देंगे, 120 रुपए, हाँ लेकिन साथ में हाँ. बोला हम आपको नॉन कम्पीट फीस भी देंगे, हम आपको कोई और नो कंपटीशन और क्या क्या है Okay. भी एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो वो पैसा भी हम्म. प्राइस का पार्ट माना जाएगा। Okay. अगर 1 लाख So शेयर के लिए 120 रुपए प्राइस है, उसके अलावा हाँ 20 एक्स्ट्रा किसी और फॉर्म में भी दे रहे हैं, हाँ. वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा लेकिन साइड लेटर बना के लिखा हुआ है, हम्म. तो वो 20 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो 20 रुपए ये वो भी ऐड हो जाएगा, तो 140 रुपीज हो जाएगा। Okay. So any incidental expenses. Okay. कंट्रोल प्रीमियम बोलो, नॉन कम्पीट फीस बोलो, एनीथिंग हाँ पेड ओवर एंड अबव द एक्विजिशन प्राइस, हाँ. एक वो मिनट उसमें लिख इंक्लूड लेते हैं. Anything thing paid over and above द एक्विजिशन acquisition. प्राइस हाँ. shall also be Also be included in acquisition price. in acquisition price. तो हमने कहा ना एवरेज Okay. प्राइस, वॉल्यूम वेटेड प्राइस, 26 वीक, 52 वीक, Yes. तो उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा Yes. पैसा दिया वो भी पार्ट माना जाएगा उसका। Okay. Where the acquirer has acquired or agreed to acquire whether by himself or through with PAC with him any shares or voting rights in the target company during the offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the offer price. The offer price shall stand revised to the highest price paid or payable for any such acquisition, provided that no such acquisition shall be made after the 3rd working day prior to the commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period. तो अब ये क्या बोल रहा है? अब ये ऑफर पीरियड कब से कब तक था? जिस दिन आपने Hmm. ऑफर डाल दिए, जिस दिन उनको लास्ट डेट थी ऑफर देने की, हाँ जब तक शेयर टेंडर करने की, हाँ अब पीरियड में अगर ये कोई और शेयर एक्वायर करता है जिसका प्राइस ऑफर प्राइस से ज्यादा है, हाँ. तो ऑफर प्राइस भी रिवाइज हो जाएगा, सबको वो नया वाला प्राइस मिलेगा। Okay, understood. और फिर ये कह रहे हैं कि जब एक बार ऑफर हो गया, टेंडरिंग पीरियड चालू हो गया, हाँ. तो उसके 3rd वर्किंग डे से लेके टेंडरिंग पीरियड तक आप कोई शेयर नहीं खरीदोगे। Okay, 3rd working day. एग्जाम्पल में डाल लो तो समझ आएगा। हाँ, better. डेट डाल दो Okay, भाई। March 31. हाँ, से लेके आपका ऑफर पीरियड था, ऑफर पीरियड होता है टिल आखिरी कंसिडरेशन पे कर दिया, रिफंड कर दिया जो भी था, So तो suppose say 30 डेज था, तो आप इसको लो अप्रैल 30। हाँ April 30. ठीक है, और टेंडरिंग पीरियड था इसमें Tendering period 10 से 20 to 20th अप्रैल। April. हाँ. अब आपने 6 अप्रैल को 220 रुपए में शेयर खरीद लिए, Bought shares for rupees 220 each. Okay. अभी आपका ऑफर चालू है, ऑफर जा चुकी है, इधर आपने 220 हाँ रुपए में शेयर खरीद लिए,
तो जो भी एक्सेप्ट करेगा ऑफर उसको 220 रुपए के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ओके। और फिर कब से कब तक? टेंडरिंग पीरियड 10 तारीख से शुरू हो रहा है, हाँ, तो उसका तीसरा दिन 13 तारीख। थर्ड वर्किंग डे, हाँ, यस। तो 13 से लेके 20 तक कोई शेयर नहीं खरीदना। Till to 20th April, not to buy shares, यस, and offer price will be revised to यस, rupees हाईएस्ट 10 to 20 to highest acquisition price. ड्यूरिंग ऑफर पीरियड। Okay, got it. Okay. The price parameters under subregulation 2 and subregulation 3 may be adjusted by the acquirer and consultant in consultation with manager to open offer for corporate action such as issuances, pursuant to rights issue, bonus, stock consolidation, stock split, dividend payment, demerger, reduction of capital, where the record date for effecting such corporate actions falls prior to 3 working days before the commencement of the tendering period. कंपनी ने एक बोनस इशू दे दिया, हाँ, एक के ऊपर एक का, हाँ, तो आपको इसका प्राइस भी रिवाइज करना पड़ेगा। ओके। सो एनी कॉर्पोरेट एक्शन कुछ है तो प्राइस एडजस्ट होता है। हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड वो जो रिकॉर्ड डेट है वो एटलीस्ट हाँ, 3 वर्किंग डेज प्रायर टू टेंडरिंग पीरियड हो। हमारे केस में 10 तारीख थी, तो 10 से 3 समझो, अगर तीनों वर्किंग डे है तो हाँ, सेवन्थ की अगर रिकॉर्ड डेट है या उससे पहले की रिकॉर्ड डेट है, तो आपका ऑफर हाँ, प्राइस रिवाइज हो जाएगा फॉर कॉर्पोरेट एक्शन। ओके। ओनली इफ record date is 3 working days prior. यस, Only. हाँ, ओके, ओके। सो इधर क्या लिखो? ओनली इफ any रिकॉर्ड डेट record date 3 वर्किंग डे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ corporate टेंडरिंग पीरियड, actions is 3 working days prior to prior to tendering, opening of tendering period, then prior to hmm then offer price to be suitably adjusted. the price to be suitably adjusted. ठीक है, Okay, got it. Provided that no adjustment shall be made for dividend declared with a record date following such period, except where the dividend per share is more than 50% higher than the average of the dividend per share paid during the 3 financial years preceding the date of the public announcement. राइट, बोनस सबके लिए करोगे, स्टॉक स्प्लिट के लिए, हाँ, डिविडेंड के लिए तभी करोगे हाँ, जब आपका डिविडेंड जो है एवरेज डिविडेंड से 50% ज्यादा डिक्लेयर किया है। अच्छा, ओके, तो अगर हर बार आप 10% डिविडेंड देते थे हाँ, और इस बार 15% दे दिया, हाँ, और रिकॉर्ड डेट 3 दिन पहले की ही है, हाँ, तो आपने मोर देन 50% डिविडेंड दे दिया, तब आपको प्राइस एडजस्ट करेक्ट। करना है। अगर 10% ही एज दिया पर तो डिविडेंड के नाम पे कोई प्राइस एडजस्टमेंट नहीं करना। तो ये डिविडेंड के ओके, लिए स्पेशल प्रोविजन है। ओके, स्पेशल प्रोविजन फॉर डिविडेंड to be adjusted only when dividend paid is greater than 15% of average dividend of preceding 3 years. Okay. तो 10 का हो Whether गया। हाँ, whether acquirer or person acting in concert with him acquire shares of the target company during the period of 26 weeks after the tendering period at a price higher than the offer price under the regulations, the acquirer and PAC shall pay the difference between the highest acquisition price and the offer price to all shareholders whose shares were accepted in the open offer within 60 days from the date of such acquisition. Oh, अगर आपने during ऑफर period. खत्म होगी और बाद में 220 रुपए पे शेयर खरीदा और आपकी हाँ, ऑफर थी 150 की, तो 70 रुपए पर शेयर आपको सबको और देना पड़ता है। तो 6 महीने तक आपको ऑफर प्राइस के हायर प्राइस पे शेयर नहीं खरीदना। नहीं, मैंने खरीदा 220 में और ऑफर प्राइस थी कितने की? 180 की। 180, हाँ, करेक्ट, करेक्ट. So 7 difference have to pay to the shareholders.
तो 6 महीने बाद Okay. की भी कंडीशन है, 6 महीने पहले है तो हाँ. 6 महीने बाद की भी है। Okay. Correct. Provided that this provision should not be applicable to acquisitions under another open offer under these regulations, or pursuant to delisting regulations or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of shares of the target company, whether by way of bulk deals, block deals, or in any other form. तो ये जो भी एक्विजिशन की बात हो रही है टेक्निकली, ये हाँ. नेगोशिएटेड एक्विजिशन की बात हो रही है, जो बल्क ब्लॉक डील्स होती है, अच्छा. जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में ऑर्डर डाल डाल के आप खरीदते हो, हाँ. उसके लिए नहीं एप्लीकेबल। ओके. आपने एक पार्टी ठीक है. ढूंढी और उसके साथ हाँ. बोला कि 220 रुपये में हम आपसे इतने शेयर खरीदेंगे, तो वो प्राइस आपको सबको देंगे। ओके. नेगोशिएटेड डील्स के लिए एप्लीकेबल। हम्म. Where the open offer is subject to minimum level of acceptances, the acquirer may, subject to other provisions of these regulations, indicate a lower price, which will not be less than the price determined under this regulation, for acquiring all the acceptances, despite the acceptance falling short of the indicated minimum level of acceptance, in the event the open offer does not receive the minimum acceptance. Suppose किसी ने वॉलंटरी ऑफर करी, हाँ. उसने बोला कि मुझे इतने % शेयर मिलेंगे तभी ये ओपन ऑफर करूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। हाँ. तो बोल रहा है वो अपने ऑफर में एक ऐसा प्राइस भी बताए जो मिनिमम प्राइस से ऊपर हो, कि इवन तो तेरे हाँ. को 20% नहीं मिले या 26% नहीं मिले, कंट्रोल नहीं मिला, स्टिल उस प्राइस पे जिसने टेंडर किया उसके शेयर ले गया। तो अगर ओके. आपने हाँ 140 मेरे रुपये को का ऑफर प्राइस रखा, 11 एक मिनट 100 रुपीज 140 तो ये रुपया प्राइस रखा, ऑफर प्राइस, हाँ. और 26% स्टेक। ओके. अब अगर आपको 26% स्टेक की ऑफर नहीं मिलती, आपने कहा अगर मुझे 26% मिलेंगे या उससे ज्यादा मिलेंगे तभी ये प्राइस दूंगा, अगर ओके. इससे कम मिले, If acquirer does not get or gets less than 26%, देन उसने बोला 100 रुपये का रेट, then ₹100. Okay. और ये 100 रुपीज मिनिमम प्राइस से ऊपर होना चाहिए। This ₹100 should be above minimum price. तो ये कौन सी ऑफर पे एप्लीकेबल है? जो कंडीशनल ऑफर्स हैं, Okay. Conditional offers. कि मेरे को अगर इतने % स्टेक मिलेगा तभी खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। अच्छा. अदरवाइज तो जो कंपलसरी ऑफर है वहां पे तो हाँ. आपको लेना ही पड़ता है ना, जितना भी आगे। करेक्ट. ठीक है. कहाँ पे है? हाँ. In the case of indirect acquisition, other than indirect acquisition referred to in Regulation 5(2), the offer price shall stand enhanced by an amount equal to a sum determined at the rate of 10% per annum for the period between the earlier of date on which primary acquisition is contracted or the date on which intention or decision to make the primary acquisition is announced in the public domain, and the date of detailed public statement, provided such period is more than 5 working कॉपी days. कर दो उसको। हाँ. तो 12 के बाद स्टॉप करें. अच्छा, इसके बाद कितने है इसमें? 16. ठीक है, जैसे फिर कल कर. ओके, एक मिनट इसको पूरा कॉपी. ओके. ठीक है। सबसे पहले कौन सा एक्विजिशन 5(2) में कौन सा पड़ता है? 5(2) में इनडायरेक्ट एक्विजिशन 80% क्राइटेरिया इज, नहीं 1 मिनट 5(2) ना, वेयर 80% क्राइटेरिया हाँ इज मेट. ठीक है, तो जहाँ पे 80% मेट कर रहा है वहां पे क्या होगा? एंटर मार दो यहाँ पे रेवोल्यूशन 5 के बाद, चल स्टैंड एनहांस के बाद एंटर मार दो। ओके. एक सेकंड. ठीक है, एंटर मार दो। फिर फॉर द पीरियड के बाद एंटर मार दो। ओके. अर्लियर ऑफ के बाद एंटर मार दो, पहली लाइन पे। पहली लाइन बिटवीन, ओके, अर्लियर ऑफ. ओके. ठीक है, एंटर मारो। कॉन्ट्रैक्टेड पे एंटर मार दो। कॉन्ट्रैक्टेड एंटर. पब्लिक डोमेन के बाद एंटर मार दो। एंड
स्टेटमेंट के बाद एंटर मार दूं। enhanced by amount equal to sum determined rate of 10% per annum. तो ये क्या बोल रहा है कि जब आप 80% वाला क्राइटेरिया मैच हो रहा है, हाँ तो आपने जो भी ऑफर प्राइस दिया है हाँ वो बढ़ जाएगा अगर आपकी जो प्राइमरी एक्विजिशन जिस दिन एग्रीमेंट किया था या पब्लिक अनाउंसमेंट जिस दिन दी थी वो डेट, दोनों पे डेट डाल दो, जनवरी और मार्च लिख दो। primary acquisition is contracted January 2025, intention March 2025. और ये डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट अप्रैल 30 कर दो। हाँ डिटेल ठीक है, तो अगर आपका ऑफर प्राइस था 100 रुपये, तो इस केस में जनवरी से लेके अप्रैल तक 10% पर एनम के हिसाब से 100 रुपये में एडिशन हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने का गैप कर दिया इसमें। 100 रुपए ओके 100 रुपये ऑफर प्राइस था। हाँ ये बोल रहा है कि अगर ये जो पहली दो डेट है जनवरी और मार्च वाली, हाँ जो भी उसमें हाँ अर्लियर है, तो अर्लियर डेट है जनवरी, हाँ और करेक्ट जो डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट की डेट है वो है अप्रैल। अप्रैल तो उनके बीच में अगर 5 वर्किंग डे से ज़्यादा का गैप है, तो इस ऑफर प्राइस को 10% पर एनम फॉर द 10% पीरियड, जितने भी पीरियड है बीच में, अभी 3 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, for the period तो ऑफर प्राइस ये कैलकुलेट होगा इन रेट एक्विजिशन। for the period Jan to April है ना, हाँ तो ये प्रोपोर्शनटी होगा ना 3 मंथ्स का। यस। ओके मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 ओके। तो अगर आप डिले करते हो, अनाउंसमेंट कर दी लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट आपकी लेट जा रही है, तो 10% इंटरेस्ट भी पे करना। तो ये प्रोविजन क्यों डाला है मतलब इसके लिए कि आप डिले मत ये करो इंडायरेक्ट एक्विजिशन में, अच्छा क्योंकि ओके जितना आप डिले करोगे आपकी ऑफर प्राइस का रेट बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई बाय शेयर होल्डर, आपको उसमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो आप क्या चाहोगे कि विद इन 5 वर्किंग डे में क्लोज कर दूं, मेरे को इंटरेस्ट ना देना पड़े। ओके ठीक है, ठीक है बाकी गॉट इट कल सर गॉट करना। इट। हाँ ये कल करना है सर, और ये नहीं फिर बाद में मोड ऑफ पेमेंट, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है ना, हाँ और फिर मेन तो एग्जाम्पशंस है जो आएगा। ठीक है सर, कल कल कवर अप करते हैं फिर। चलो ठीक है। ओके फाइन यस।